Yes, good morning everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your social science teacher. And today we are continuing same chapter Europe, which we have started earlier, many days before. So yesterday we have done recapitulation. Recapitulation for the full chapter means we have discussed each and every question. Right. Gania beta camera proper. Ahan, Anish, Trijan. Last warning, camera must be in a proper way. Yes. So recapitulation, we have done so many questions along with the answers. Answers we have not written, only questions we have written as I told you that your PT1 is going to start. So we have discussed those kind of questions. Yes, no doubt that you are having several questions in your mind like Rahul ka hai, Kashish ka hai, and one more student. Your 3 doubts will be cleared afterwards, last 10 minutes. Okay. Yes, Anuj, want to say something? You raised hand. Ma'am, I want to understand the topic conservatism after 1815. Conservative not cleared? No. Okay, today we will clear conservative also. Yes, Purshant, want to say something? Purvish Krishnur, camera on. हाँ Purshant, unmute कर रही हूँ. Want to say something, beta? Yes, ma'am. I was saying that. Can you explain liberalization one also? Okay. I told you yesterday. ठीक है बेटा. Today I clear. मुझे लगता है आज इतने सारे doubts हैं. I will only clear the doubts. कुछ नया कर ही नहीं पाएंगे. चलो कोई बात नहीं. Yes, Kashish, want to say something? मैम जो पेज नंबर 1 पे टॉपिक है ना एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. मैम उसका आपने क्वेश्चन बताया था. आप क्वेश्चन रिपीट कर दो और आंसर भी मैंने मार्क नहीं किया हुआ. प्लीज पेज नंबर 8 पे. मैम एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास 8 नंबर पे. हाँ जी. क्वेश्चन वाज प्लीज नोट डाउन. लिखा हुआ था सबने. अनुज टेल देम क्वेश्चन. मैम which? Page number 8. Role of aristocracy and middle class. मैम नो रोल ऑफ एरिस्टोक्रेसी. हाँ मैम यही वाला है. हाँ जी. What was the role of aristocracy and new middle class for the nationalism in Europe? Am I right, Krish? Yes. Kashish, am I right, beta? Yes, ma'am. Okay. Yes, Shabnam, want to say something? You raised hand. मैम ज़ोल्बरीन का आंसर रिपीट कर दोगे? ज़ोल्बरीन करवा देती हूँ. ठीक है बेटा. चलो. Now, yes, Abhishek, you raised hand. Want to say something? Abhishek, you raised hand, beta. Want to say something? Anish Krishnur, camera on. Krishnur Shandeep, camera on, beta. Gania, unmute yourself. Good morning, ma'am. Good morning. Your good name? Ma'am, it's Gania. Gania, this is your first class you are attending? Yes, ma'am. I was Reason? studying by myself till then. Huh?
Ma'am, I bought the books like a little, I think in this week only, like someday, and then I was studying by myself. Till now, I've done the syllabus by myself. Okay, now see, you have to complete your pending work, marked on books, Yes, ma'am. textbook, and write all the questions which I have given. You have to write all the questions in the notebook. Okay, very, very important questions for your. Yes, ma'am. Hanji, Hanji. And don't miss any class afterwards. Rest I've done my notes by myself also. Okay. Medha, unmute yourself. Medha Zayal, unmute yourself. Camera on. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Beta, this is your first class you are attending? No, ma'am. Okay. Which class you have attended earlier? Ma'am, last when you we did role of aristocracy and the new middle class, and after Okay. that, what did liberal nationalism stand for? Okay, but you missed so many classes. I don't know why. Ma'am, but I will listen that videos on which were uploaded on Facebook. Okay, but make one thing sure here, you have to attend all the classes, right? Don't miss any class, because attendance is very, very important for your board exam. Tanvi Thakur, unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tanvi Thakur, unmute yourself. Yes, ma'am. Ma'am. Hanji, good morning, Tanvi. Good morning, ma'am. Beta camera on karo. Ma'am, my camera is on. Okay, which book is in your hand? Ma'am, actually, this is notes book in which I have written all the Show me your important- book. Show me your textbook. Yes, ma'am. Like I'm showing now. Hanji, show me your books. All the students, show me your books in the camera like this. Closed book, cover page. All the students. Okay. Okay. Yes, Asta, unmute yourself. Keep your books down. Anish, I have not seen your book. Ma'am, can you explain the picture given on page number 11? Page number 11. Okay, definitely. Today you people are having so many doubts ना, मुझे नहीं लगता आगे शुरू कर पाए. कोई बात नहीं, हम पिछले doubts clear करेंगे आज. No problem. Now we are going to clear the doubts. Make one thing sure here. This is the thumb rule of the class that you people will keep your videos on. Those whose video is switched off, I'm sorry, I'm going to remove them. They will not enjoy the rest of the lesson. And moreover, though we are not going to read new topic today, we are continuing to clear the doubts, previous doubts, but it is very, very important to clear on. Because yesterday so many students were saying in, and few students sent me WhatsApp message to clear, like Kashish ne wo line ka bheja tha. So I made her clear that we will clear this doubt in the morning class, right? So समझ लो आज doubt clearing session है. Whatever we have done up to page number 10, 10 पेज में जो जो doubt है we will clear that. Okay. हाँ जी अभिषेक unmute yourself. मैम वियना कांग्रेस का जो मेन फंक्शन था वो भी एक बार एक्सप्लेन कर देना फिर से. Page number? मैम it's on page number मैम 10-11. ठीक है बेटा. मुझे लगता है सारे पेज क्लियर हो जाएंगे आज. चलो ठीक है. अभिषेक डाउन हैंड बेटा. चलो now we are going to start our doubt clearing session. Everyone's video must on, otherwise you know that. Afterwards you will be responsible for the next. अब आज सारे आपके doubts clear करते हैं, ठीक है? हाँ जी, first doubt from Kashish. आप सब भी note कर लो. Maybe this will be your doubt also, but you have not asked for. कोई बात नहीं, clear करते हैं. Kashish, unmute yourself, बेटा. Tell me page number and line for all the students. Page number 5, the French Revolution and ideas of nationalism. Ma'am, the line is the political and constitutional changes that came in wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy
to the body of French citizen. Yes, I hope you got the point. अब इसमें कुछ भी नहीं है, दर्शी सिर्फ इस लाइन में ये कहा whatever you have done in French Revolution in grade 9, same things are depicted over here. कि पहले क्या था, monarchy थी. Some of the few people were honored, but after that, after the revolution, Louis XVI was died, and in that place, किसके place पर? In that place, from monarchy, it was transferred, the rule was transferred into body of French people, body of elected people. अब monarchy नहीं रही, अब उसकी जगह पर parliament बनेगी, constitution बनेगा, people की सरकार. Show me thumbs up if this doubt clear. एक एक से पूछने वाली हूँ मैं. Okay, show me thumbs up if this doubt is clear to you. Thank you very much for responding. Yes, now doubt था राहुल. राहुल, unmute yourself, बेटा. अब अच्छा, make one thing clear here. I am clearing the doubts to you ना. Last 10 minutes अब ये मेरे doubts हैं. अब मैं आपसे पूछूंगी कशिश का क्या डाउट था और मैंने क्या क्लियर किया. ठीक है. Now Rahul, tell me your doubts. Page number? Page number 8, topic 2.1. Page number 8, topic 2.1. Okay बेटा, very easy पर कोई बात नहीं, पहली बार जब पढ़ते हैं तो दिक्कत आती है. Now, role of aristocracy and new middle class. सबसे पहले राहुल इसकी हेडिंग समझो. ठीक है, सार्थक make your camera proper. रोल ऑफ एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास. अरे एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? किंग और क्वीन. दे वर वेरी फ्यू इन नंबर्स. अब अंबानी अडानी तो थोड़े ही होते हैं ना, जबकि लोकल पॉपुलेशन पीजेंट्स बहुत सारे होते हैं. अच्छा, सेकंड थिंग आप राहुल करोगे इसमें कि दे वर टाइज बिटवीन ईच अदर विद द टाइज ऑफ मैरिज. उनकी शादियां उन्हीं के ही रिलेटिव्स में होती थी, नॉट विद द ऑर्डिनरी पीपल. थर्ड थिंग यू विल डिस्कस हियर कि अरिस्टोक्रेसी जो थी इनकी अपनी अपनी स्टेट्स होती थी. बड़े लोग थे ना, तो टाउन में भी कंट्री में भी बड़ी बड़ी स्टेट्स होती थी और इन्होंने खुद को सोशल डिवीजन से अलग रखा हुआ था. दे वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल. दे वर लाइक अ हाई क्लास पीपल. ठीक है. नेक्स्ट थिंग यू विल से दैट दे स्पोक फ्रेंच मच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी. लोकल लैंग्वेज, वर्नाक्युलर लैंग्वेज नहीं बोलते थे, ये जानबूझकर फ्रेंच बोलते थे ताकि डिप्लोमेसी दिखाएं, खुद जो बात कर रहे हैं किसी और को समझ ना आए. सो दीज 3 थिंग्स यू विल मेंशन इन द रोल ऑफ एरिस्टोक्रेसी. नाउ रोल ऑफ मिडिल क्लास. अब जब हम न्यू मिडिल क्लास की बात करेंगे तब हम अनुज, अनम्यूट योरसेल्फ. द न्यू मिडिल क्लास मींस, लेट मी सी, किसको पता है? अनुज, अनम्यूट योरसेल्फ. बेटा, द न्यू मिडिल क्लास मींस Middle class. हाँ, मैंने कहा था इमीडिएटली आंसर दोगे आप, द न्यू मिडिल क्लास. अब देखो अनुज, हिंट देती हूँ मैं. मिडिल क्लास मतलब लाइक यू एंड मी, है ना. मिडिल क्लास पीपल. एवरी टाइम व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस. बट हियर इट इज रिटन द न्यू मिडिल क्लास. ये नई मिडिल क्लास कौन सी आ गई अनुज? नहीं, चलो कोई बात नहीं. हाँ, People who came in middle class. कौन से लोग? Newer people, ma'am, like. चलो, फुरशाद, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू मिडिल क्लास? ये कौन सी क्लास थी? Ma'am, the working class population, लाइक industrialist, businessman, etc. एजुकेटेड पीपल. ठीक है, पढ़े लिखे लोग थे. अब क्रिश का राहुल का अगला डाउट था कि रोल ऑफ न्यू मिडिल क्लास. दोज मिडिल क्लास पीपल हु वर वर्किंग क्लास, बिकॉज अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था. बट इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन 19th century and on the other countries of Europe it came in 19th century. इंग्लैंड में 18 में, बाकी जगह पर 19 में. अब कमर्शियल क्लास आ गई थी. कमर्शियल क्लास कौन सी होती? दोज हु वांट टू अर्न प्रॉफिट, those who are educated people. So these kind of people, पहली बात आप ये कहोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी थी, ग्रोथ हो चुकी थी, पॉपुलेशन ये बहुत ज्यादा थी. एंड थर्ड थिंग यू विल ऐड हियर, 18th century में बाकी जगह पर आई थी. एंड विच काइंड ऑफ पीपल यू आर इंक्लूडिंग इन द न्यू मिडिल क्लास. सो 2 points for aristocracy we have cleared and 2 points for role of middle class we have cleared. Now show me thumbs up if this doubt is clear. क्योंकि इसके बाद मैं पूछने वाली हूँ आपसे एंड में. थैंक यू वेरी मच पुरुषार्थ.
शबनम, मेधा, राहुल, तन्वी, कृष्णु, सुनो खाली ओके। सो हाँ मेधा बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Ma'am, would you again explain what is the role of new middle class? बेटा न्यू मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने इंडस्ट्रीज लाई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ हो गई थी, दे वांट टू ऑपरेट इट, दे वर वेरी लार्ज इन नंबर एंड मोर ओवर दे यूज वर्नाकुलर लैंग्वेज, आप ये भी ऐड कर सकते हो। और दूसरा 18th सेंचुरी में फ्रांस में आई थी, और सॉरी इंग्लैंड में आई थी, और 19th सेंचुरी में फ्रांस में और दूसरे पार्ट्स में आई थी। दीज कमर्शियल क्लास इंक्लूडेड एजुकेटेड पीपल एंड दे वांट टू अर्न प्रॉफिट। हाँ एक चीज मैं बताना भूल गई राहुल, these new middle class want liberty. They don't want any kind of special facilities or privilege to the monarchy, to the aristocracy, to the high class people. Okay, चलो राहुल unmute yourself. मैम मेरा सेकंड डाउट था कि लिबरलिज्म इन सोशल अफेयर। हाँ जी, लिबरलिज्म इन सोशल अफेयर, चलो मैं सारे क्लियर कर देती हूँ। हाँ जी, लिबरलिज्म का मतलब पहले बताओगे, लिबर वर्ड कहाँ से लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम था, एजुकेटेड पीपल वांटेड इट, दिस विल बी द इंट्रोडक्शन। नाउ राहुल इज आस्किंग इन सोशल स्फीयर। नाउ आई होप यू हैव मेड पॉइंट ओवर हियर ना, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एम आई राइट? शो मी थम्स अप इफ आई एम राइट एंड इफ यू हैव मार्क्ड 3 points, political, social and economic sphere. Okay, thank you Kashish. बेटा you all have marked, मेरे पास हमेशा 10F की अटेंडेंस है। हाँ जी, थैंक यू पुरुषार्थ, because you have all marked. मेधा, कृष्णूर, कैमरा ऑन। सी मैं आपको बता सकती हूँ कौन से बच्चे ने कौन सी क्लास अटेंड करी है। We are not joking over here. Okay, we are quite serious attending your, see these are your names, आप देख सकते हो कैमरा में, your names 10F, this is your attendance I have marked right now. हर एक डेट की अटेंडेंस है मेरे पास, so it means you have attended the class. Thank you very much for responding and you have marked the hint and headings explanation on the textbook, right? हाँ शबनम बेटा, yes शबनम, unmute yourself, फिर राहुल का डाउट क्लियर करते हैं। मैम मैंने मार्क नहीं किया बट नोटबुक पे मैंने लिख लिया हुआ है, चलो एक ही बात, क्योंकि उस दिन नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। अच्छा सबसे पहले एक चीज देखो, whenever we are talking about the heading, okay Rahul, heading clear होनी चाहिए। if the heading is clear to us, we can put the material in the headings, right? now first is political, जो पॉलिटिक्स में हो रहा है वो सारा ऐड कर देंगे उस टाइम। सोशल मीन्स सोसाइटी में क्या था, तो सोसाइटी की 3 बातें मेन सोशल में आती है। इकोनॉमिक, whenever we are talking about economics, we are talking about money, the financial status, the budget of the country, तो हम वो सारी बातें इकोनॉमिक्स में डालते हैं। Here political मतलब अथॉरिटी कैसी थी, किंग और क्वीन कैसा था, गवर्नमेंट कैसी थी। नाउ सोशल, सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो सोसाइटी में राइट टू वोट पहली बात है, राइट टू इक्वालिटी पहली बात है, राइट टू प्रॉपर्टी पहली बात है, सोसाइटी में वुमेन मेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं, सो दीज थिंग्स वी विल ऐड। अच्छा इकोनॉमिक की जब हम बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द बजट एंड द मनी एंड स्पेशली वेरी स्पेशली द बिजनेस क्लास पीपल, दोज हु डू ट्रेड विद द अदर कंट्रीज। अच्छा ये आप लिख के ना इकोनॉमिक का स्फीयर लिख के, देन यू विल ऐड द एग्जांपल। अगले पेज पे ना पेज नंबर 10 पे एग्जांपल दी है आपको, दिस measurement of the cloth is different in this area and the currency was different in that area and it was very difficult for the businessmen people and the traders to do the counting and it was time consuming also, so these kind of example you will add here। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस हेडिंग क्लियर होनी चाहिए, अंदर की 3 बातें क्लियर होनी चाहिए बस। यस अनीश ऋषि कैमरा ऑन, मेधा कैमरा ऑन। हाँ जी बेटा राहुल अनम्यूट कर रही हूँ, वांट टू से समथिंग बेटा। मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा चलो मैं दोबारा बोल देती हूँ, पॉलिटिकल 3 थिंग्स, सोशल 3 थिंग्स, इकोनॉमिक 3 थिंग्स। इन पॉलिटिकल यू विल एक्सप्लेन द रूल ऑफ किंग और क्वीन कैसा था, गवर्नमेंट कैसी थी, अथॉरिटी कैसी थी। ओके नाउ हियर यू हैव रिटन 3 थिंग्स कि उनको प्रिविलेजेस थे और 19th सेंचुरी में ऐसा था, पार्लियामेंट नहीं थी बट लिबरलिज्म वांट पार्लियामेंट and constitution and rule of the people।
सोशल में हमने बात की थी सोशली ऑल शुड बी इक्वल, राइट टू इक्वलिटी, इक्वल राइट टू प्रॉपर्टी, एंड मोर ओवर दे विल they are doing this discrimination between man and woman or not. तो सोसाइटी की सारी बात, तीन बातें. When we are talking about business class people, working class people, how they earn, how they do trade, and especially mention the example on the next page, like the measuring of the cloth, LE था वो कितना मीटर different था, right? Now show me thumbs up if Rahul's doubt is cleared and all clear to you. क्योंकि इसके बाद फिर मैं पूछने वाली हूँ आपसे. Thank you Rahul, thank you very much. चलो, thank you. Now next doubt किसका था? Raise your hand. हाँ राहुल, अनम्यूट कर रही हूँ राहुल. Yes अनुज, अनम्यूट कर रही हूँ. Want to say something बेटा? मैम पेज नंबर 10. Okay, आ जाओ जी. Conservatism. पेज नंबर 10 पे क्या था? Conservatism after Okay, 1850. कंजर्वेटिव, ठीक है बेटा. अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, अनुज का डाउट क्लियर करने के लिए, लेट मी क्लियर द हेडिंग. ये मेरी आदत है, ये मेरी हैबिट है. बिकॉज इफ द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ना, देन यू विल ऑटोमेटिकली राइट द आंसर. अगर पता नहीं क्वेश्चन में क्या है, तो आंसर कहाँ से ऊपर से थोड़ा ना आ जाएंगे, है ना? बिकॉज इफ द हेडिंग इज क्लियर टू यू, देन यू विल एबल टू राइट आंसर. अगर हेडिंग क्लियर नहीं है, हमें पता ही नहीं क्वेश्चन में पूछा क्या है, आंसर तो क्या ही करेंगे फिर हम लोग, है ना? तो नाउ अनुज इज आस्किंग कंजर्वेटिव. नाउ रेज योर हैंड्स दोज हु नो द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव. बस मुझे इतना बता दो, क्वेश्चन अपने आप बन जाना है. नो वन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंजर्वेटिव ना पता हो. चलो सानिया, अनम्यूट योरसेल्फ. बेटा व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिव लोग कौन होते हैं? मैम एयरटेल अपनी अनम्यूट कर रही है. हाँ जी प्लीज राहुल. Ma'am, the people who are of old traditions and they follow the previous customs and restrictions that are being followed by their. हाँ, those people. Conservatives were the group of people who do not wanted the change in the society. हाँ, they believe in. They believe in their autocratic rule. हाँ, they believe in the autocratic rule. They believe in the tradition. They believe in the customs of the old traditions and the old people. They don't want to accept any quick change in the society. वो conservative लोग होते हैं. अब heading clear है आपको? अब सुनो, इसमें आप डाल लोगे क्या? And now conservative regime. Those kind of conservative people, here you have marked 3 points. First point में आप लिखोगे definition डाल. की टर्म में जो लिखा वो डाल दो. सेकेंड पॉइंट में आप ये डालोगे कि नेपोलियन एंड मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की. नेपोलियन नेवर बिलीव्ड इन द डेमोक्रेसी. उसको लगता था सब लोग अच्छे नहीं होते हैं, सब लोग सयाने नहीं होते हैं. सो नेपोलियन आल्सो डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी एंड बिलीव इन मोनार्की. मोनार्की मतलब कंजर्वेटिव. So, a modern army, efficient bureaucracy, dynamic economy, and abolition of feudal system, serfdom could strengthen the autocratic monarchy of the Europe. वो कहते थे military army ज़्यादा strong है, king और queen का rule ज़्यादा strong है, so they believe in the monarchy of Europe. Means तीन बातें हमने कहनी है, तीनों बातों पर हमने autocracy को बढ़िया कहना है. Answer you have already marked. Now show me thumbs up if it is clear to you. क्योंकि इसके बाद फिर मैं पूछने वाली हूँ आपसे कंजर्वेटिव रिजीम क्या था. वेटिंग फॉर मोर थम्स अप्स. थैंक यू मेधा. चलो, थैंक यू वेरी मच. ओके, सृजन, अनीश, उर्वीश, शान, कैमरा ऑन बेटा. यस शबनम, वांट टू से समथिंग बेटा? मैम डाउट. हाँ पूछो बेटा. 1 मिनट शबनम, 1 मिनट. हाँ अनुज, want to say something? Unmute कर रही हूँ. Ma'am, can you explain that? Ma'am, you said Napoleon point. हाँ, नेपोलियन कुछ नहीं करना आपने, इसमें कुछ नहीं लिखना. नेपोलियन बिलीव्ड इन कंजर्वेटिव. चलो बात ही खत्म कर दो. नेपोलियन बिलीव्ड इन ऑटोक्रेसी. ठीक है. नेपोलियन बिलीव्ड इन रूल ऑफ किंग और क्वीन. ठीक है. नेपोलियन नेवर बिलीव्ड इन डेमोक्रेसी, बल्कि जहां पर डेमोक्रेसी थी उसने सत्यानाश कर दिया डेमोक्रेसी का, उसने खत्म कर दी.
तो कंजर्वेटिव पीपल जो पहले ही ट्रेडिशन में विश्वास करते थे, नेवर वांट टू चेंज, दे डोंट वांट लिबर्टी। वो कहते थे भगवान ने कह दिया, जो किंग ने कह दिया। नेपोलियन भी ऐसा था, और उसने कहा था मोनार्की, आर्मी, मॉडर्नाइजेशन, ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट जो करती है वही ठीक है, बस और अनुज इसमें कुछ नहीं। ठीक है, चलो। हाँ जी शबनम, अनम्यूट कर रही हूँ बेटा। व्हाट यू वांट टू से? यू रेज्ड हैंड। मैम व्हाट वाज Zolverin explain its Zolverin, role? चलो जी, आंसर नोट करना चलो है। ठीक है, Zolverin पे आ जाओ। करवा अब सबसे पहले मेरी बात सुनो, Zolverin is a new word for you, बट ये देख लेना, टुडे आई एम हैविंग 25 मेंबर्स इन द क्लास। अब बाकी सबके लिए नया हो Zolverin, पर मेरे इन 25 बच्चों के लिए नया ना हो। Zolverin कुछ नहीं था, एक ग्रुप बना था। नाउ Zolverin से पहले हमने क्या पढ़ा? मेनी ऑफ द कस्टम ड्यूटीज एंड ट्रेड बैरियर्स वर ऑन द बिजनेसमैन पीपल, और मैंने आपको कहा कि जो हाई अचीवर्स हैं दे विल ऐड द एग्जांपल ऑफ एली। ओके, सो दोज फ्यू पीपल विल ऐड द एग्जांपल। अब वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी, ठीक है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी जो बिजनेसमैन क्लास को थी, तो अब उन्हीं को ही सॉल्व करने के लिए हम लोग बोलेंगे। तो देयर वाज अ वन ट्रेड ग्रुप, वन ट्रेड यूनियन और कस्टम यूनियन, दैट नेम वाज Zolverin। ये फ्रांस का वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। Zolverin वाज अ ट्रेड ग्रुप और कस्टम यूनियन। अब इन्होंने क्या किया था, जो ऊपर हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी ना बिजनेसमैन क्लास के लिए, दैट प्रॉब्लम वर रिजॉल्व, और उन्होंने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, कॉमन नेशनल करेंसी कर दी, एंड दे रिड्यूस करेंसी फ्रॉम 30 to 2। इट वाज फॉर्म्ड इन 1834, और इनिशिएटिव किसने लिया था? प्रशिया ने, और टैरिफ बैरियर हटाकर इकोनॉमिक नेशनलिज्म कर दिया था, एंड ऑल द बिजनेस क्लास पीपल वर वेरी हैप्पी विद दिस। बस कुछ नहीं, ये Zolverin था। ओके, हाँ शबनम, अनम्यूट कर रही हूँ। मैम ये आंसर तो समझ आ गया, बट मैम इसको मार्क करवा दो अभी। ओके, नाउ मार्क 3 पॉइंट्स। पेज नंबर 10, सेकंड पैराग्राफ, सच कंडीशंस। अब सच की जगह आप सम लिखो। यस अभिषेक, अनम्यूट कर रही हूँ, वांट टू से समथिंग? मैम मुझे भी एक सिंपल सा डाउट था। हाँ, डाउट है? मुझे भी एक सिंपल सा डाउट था मैम, व्हाट वाज वियना कांग्रेस? व्हाट वर वियना कांग्रेस? ठीक है, मैं अभी करवा देती हूँ। Zolverin मार्क करो फटाफट। सम कंडीशंस वर, सच की जगह सम लिखो, एंड दिस विल बी फर्स्ट पॉइंट। अप टू कैपिटल, and heading will be obstacle to economic exchange, obstacle to economic exchange. This will be first point. Anish Rishi, camera on, otherwise I am removing you. Second point, in 1834 up to 32:2. This will be second point, and heading will be abolish tariff barriers. Abolished tariff barriers. Next, the last point, the harnessing economic interest up to at the time, and heading will be nationalist sentiments. Nationalist sentiments. Yes, Shabnam, unmute yourself. You raised hand again. No ma'am, it was previously. Okay, then lower hand ना, इसमें इतना टाइम हो जाता है मेरा खराब। हाँ जी अभिषेक, अनम्यूट कर रही हूँ। टेल मी योर डाउट। वियना कांग्रेस? मुझे बस सिंपल सा, यस मैम, व्हाट वाज वियना कांग्रेस, नथिंग एल्स। कुछ नहीं था। अब इसमें देखो वियना, हेडिंग क्लियर करो पहले। हाँ मृदुल, यू रेज्ड हैंड, वांट टू से समथिंग?
मैम जो ज़ोल्वेरिन का फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग क्या है और थर्ड पॉइंट क्या है? हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज। अच्छा अभिषेक, अब मेरी बात सुनो। वियना कांग्रेस, सबसे पहले इसकी हेडिंग क्लियर करो। वियना इज द नेम ऑफ अ प्लेस। वहां पर बैठकर एक मीटिंग हुई थी, उसको वियना कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, वियना में बैठकर एक कांग्रेस हुई थी 1815 में, उसको वियना कांग्रेस कहते हैं। अब हुआ क्या था, वियना में सम ऑफ द डेलीगेट्स, सम ऑफ द बिग पीपल वर सिटिंग ओवर देयर। बड़े बड़े धुरंधर बंदे, लीडर टाइप बंदे वहां पर बैठे थे। अब इन्होंने क्या किया था, 4 मेजर कंट्रीज डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी एज वेल एज नेपोलियन। नेपोलियन को खत्म कर दिया था। अब ये कह रहे थे कि आफ्टर नेपोलियन व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव्स दैट वी पीपल विल फॉलो इन यूरोप। तो ये 5 बातें वियना में बैठकर उन्होंने डिसाइड करी थी। यू हैव ऑलरेडी मार्क्ड। ठीक है, ये 5 बातें क्या थी, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, समझने वाली चीज कम है इसमें। अच्छा, फर्स्ट थिंग यू विल ऐड कि अनडू द चेंजेस डन बाय नेपोलियन। जो नेपोलियन ने चेंजेस किए थे, अनडू। सेकंड थिंग यू विल डू, फ्रांस में एक बाउंड्री वॉल बनेगी सो दैट फ्रेंच आर्मी कुड नॉट एंटर इन एनी कंट्री, क्योंकि सारे पंगे फ्रांस से पड़ते थे। आपको पता है ना, व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catches cold। तो फ्रांस के आसपास बाउंड्री बनेगी, ना फ्रांस आर्मी कहीं आएगी, ना लोगों को पता होगा लिबर्टी क्या है, ना लोगों को पता होगा नेशनलिज्म क्या है, एंड दे नेवर एवर डिमांड फॉर द फ्रीडम। थर्ड थिंग यू आर गोइंग टू डू हियर कि प्रशिया को कौन सा एरिया मिला था, सेक्सनी किसको मिल गया था। फोर्थ थिंग यू आर एडिंग हियर कि जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वर वंडरफुल वर्क डन बाय नेपोलियन एंड दैट वाज अनटच्ड। उसको नहीं छेड़ा, वो काम बहुत अच्छा था नेपोलियन का, उसको नहीं छेड़ा गया। फिफ्थ थिंग यू विल ऐड हियर कि ये सब हुआ क्यों। समझ आ रही है ना आपको अभिषेक, ये सब हुआ क्यों, ये चारों पॉइंट क्यों हुए, 4 ऑब्जेक्टिव्स वियना में बैठकर क्यों लिए इन्होंने। एक्चुअली द मेन इंटेंशन ऑफ दीज पीपल वर ओनली एंड ओनली टू रिस्टोर द मोनार्की। वापस किंग और क्वीन आ जाए और डेमोक्रेसी खत्म हो जाए। सो दीज 5 पॉइंट्स यू विल ऐड इन वियना कांग्रेस। शो मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू यू। चलो, thank you very much. So today we have not done anything new in the class. We have cleared the doubts only. फिर भी आपके doubts होंगे तो कोई बात नहीं, we will clear in the next class. Okay, this is amazing 10F that we have not done anything new. कोई बात नहीं. 45 minutes we have done. We have cleared the doubts. चलो, thank you very much. Want to say something, Anuj? Yes, beta. Yes, beta. Ma'am, have we marked this question when France sneezes? Rest of your This we have not catches marked. cold. This we have not marked. You have highlighted only the line. ये क्वेश्चन मैं खुद डिक्टेट करवाऊंगी, ये आपको बुक से नहीं मिलेगा। ओके, ये क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगी। हाँ आस्था, अनम्यूट कर रही हूँ। Ma'am, you said that Napoleon was a conservative person and he wanted the monarchy, and Vienna Congress also wanted the monarchy. Then why did they undo the changes done by Because very good Napoleon? question, Astha, wonderful question. They want to do changes because Napoleon ने जो किया अपनी मर्जी से किया, उसको लगा था मैं जो कहता हूँ वही सही है। बट नेपोलियन जब हार गया वाटरलू में, ये तीनों कंट्रीज ने, चारों कंट्रीज ने मिलकर उसको किन ने हराया था नेपोलियन को। यू कैन रीड फ्रॉम पेज नंबर 10, क्लास में लिखा ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। जब इन्होंने हरा दिया थे, ये भी वही मोनार्की में बिलीव करते थे, बट उनको नेपोलियन के काम अच्छे नहीं लगे तो उन्होंने ये वाले ऑब्जेक्टिव्स बना दिए। बोथ बिलीव इन मोनार्की, दोनों मोनार्की में ही विश्वास करते थे। ठीक है, हाँ अनुज बेटा, अनम्यूट करिए। वांट टू से समथिंग बेटा? Asta, lower hand. No, ma'am, it was from before. From Napoleon? No, ma'am, the hand was raised before. अच्छा, ठीक है, okay. चलो, now I am going to wind up the class and make sure that these doubts must be clear to you. अगर फिर भी कोई डाउट होगा, you can send me WhatsApp message. और कल की क्लास फिर इसके लिए लगा देंगे। 4 बार कहोगे तो मैं 4 बार भी एक डाउट क्लियर कर दूंगी। बट मैं कभी आपसे पूछूं ना कंजर्वेटिव, या मैं आपसे पूछूं द न्यू मिडिल क्लास, या मैं पूछूं नेपोलियन,
सिविल कोड, तो फिर मुझे जरूर आंसर देना। ठीक है अनुज, याद रखना द न्यू मिडिल क्लास। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।